Hello everyone, welcome to my YouTube channel Jasti Ki Pathshala. This is class 5 and today we will do question and answer of Unit 5, Chapter 2, Rip Van Winkle. Fun with new words. Circle the correct meaning of the given words. Idle away. Idle away means wasted. Constant. Constant means steady. Constant means कहीं पे steadily खड़े होना या वहां पे ठहर जाना. Companion. Companion means partner. Realize, to understand. Listen, to move down, नीचे की ओर जाना. Barrel. Barrel एक wooden container को कहते हैं. Contents means the ingredients. कुछ सामान या फिर कोई चीज जो बैरल में थी उसे ingredients कहते हैं. Next. Match the words in the box with their meaning. You may take the help of dictionary. Okay. नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन. माउंटेन है, माउंटेन के लोअर पार्ट को क्या बोलेंगे? दिस इज द माउंटेन्स और इसके लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? फुट हिल्स. ग्रे हेयर. ग्रे हेयर को क्या कहते हैं? ग्रिजल्ड. टू रब जेंटली. स्ट्रोक्ड. टू बी वेरी सरप्राइज्ड. बहुत ज्यादा सरप्राइज होना. एस्टोनिश्ड. फिफ्थ, नॉन टू यू. जो आप जानते हो पहले से तो क्या बोलोगे आप? आई एम फैमिलियर विद दिस. तो नॉन टू यू मीन्स फैमिलियर होना किसी चीज से. नेक्स्ट, लेट्स रीड. से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन. रिप कैसा नेचर का पर्सन था? वो काफी काइंड था और बच्चों के साथ खेला करता था. तो दिस इज ट्रू. रिप वॉज हार्ड वर्किंग मैन. दिस इज फॉल्स. रिप को किस चीज में मजा आता था? टाइम पास करने में. He was just idled away all his time. The short old man on the mountain was his constant companion. रिप वैन विंकल का constant companion कौन था? Dog. और यहाँ पे क्या बताया गया है? Short old man. No. So this is false. Rip helped the old man on the mountain because he wanted to have drink from the barrel. क्या रिप इसलिए हेल्प किया उसका ओल्ड मैन का ताकि उसे ड्रिंक मिल सके? नो. क्योंकि रिप हेल्पिंग नेचर के थे इसलिए उन्होंने हेल्प किया. सो दिस इज फॉल्स. रिप वॉज अवे फॉर 20 years because he was asleep on the mountain. Very true. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. Yes, this is true. वो ड्रिंक पीने की वजह से ही उसे गहरी नींद आ गई ना. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. क्या सब लोगों ने उसे इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि वो गलत विलेज में चला गया था? नहीं, क्योंकि वो 20 years बाद आया था और उसके लुक्स काफी चेंज हो गए थे. So this is false. Complete the following sentence. Rip's village was situated. रिप का विलेज कहाँ था? At the foothills of Catskill Mountain. The children of the village loved him because he played with them. Right? Next, Dash was his constant companion. उसका constant companion कौन था? The dog named Wolf. The villagers stared at him because no one knew him. Villagers उसे क्यों देख रहे थे? क्यों घूर रहे थे? क्योंकि कोई उन्हें नहीं पहचान पाया था, कोई उन्हें नहीं जानता था. The old woman who recognized Rip was her old neighbor. Next. Work in the group of four. What were the strange things about the man on the mountains? जब रिप माउंटेन में गया तो वहां पे कुछ ऑड लुकिंग पीपल थे ना, शॉर्ट हाइटेड के. तो उनके बारे में कुछ विशेषताएं बतानी है कि वो उसके बारे में कुछ स्ट्रेंज थिंग्स बताने हैं कि वो लोग क्या क्या करते थे. सो 4 sentences we have to make. First, they were dressed in the same way. Second,
They had various shapes and colors of beards. उनके various type के colors और beards थे. Next, they were very serious and silent even while playing game. और जब वो लोग गेम खेल रहे थे तब भी वो बहुत ज्यादा सीरियस थे और साइलेंट थे. No one was talking even. No one was laughing. Four, they were very short heighted. उनकी हाइट काफी कम थी. What kind of man was Rip Van Winkle? Rip Van Winkle किस टाइप का आदमी था? उसके बारे में कुछ बताना है. So first one is given as example. He was a kind neighbor. Second, he was a lazy man. रिप कैसा था? लेजी था. बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था उन्हें और वो काफी गुड नेचर का था. So second one is he was a lazy man. Third, he loved to play with children. Fourth, he was good-natured fellow. Pick out the names of the game mentioned in the story. इस स्टोरी में कौन कौन से गेम मेंशन किए गए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लाइंग काइट्स. रिप वैन विंकल बच्चों को सिखाते थे काइट्स को फ्लाई करना. तो फर्स्ट ये है. सेकंड, चेस. नो, चेस नहीं है इसमें. नाइन फाइव्स. यस, वो शॉर्ट हाइटेड मैन नाइन फाइव्स खेल रहे थे. सो दिस इज ट्रू. थर्ड, शूटिंग मार्बल. यस, दिस इज ट्रू. रिप वैन विंकल शूटिंग मार्बल भी सिखाते थे किनको? बच्चे को. माउंटेन क्लाइंबिंग. यस, माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में दिया गया है. ऑब्वियसली दिस इज नॉट एज अ गेम बट रिप वैन विंकल माउंटेन पे क्लाइंब किए थे. सो यहाँ पे हो सकता है. यू कैन राइट इट. Sometimes we join two words to make a describing word. For example, Rip was a good-natured man. Everybody liked him. कभी कभी हम डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करते हैं किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए. जैसे कि गुड नेचर्ड. गुड नेचर्ड मैन. इसको हम लोग एडवर्ब भी कहते हैं. जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं तो उसे हम लोग एडवर्ब भी कहते हैं. तो हियर आर सम एडवर्ब्स. कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसे पढ़ के उसे हमें अरेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द पैराग्राफ. Miss Das has a dash job in clothes shop yesterday and dash woman walked into the shop. She was wearing dash shoes. A dash dog was with her. I want dash shirt for my dog, please, she said. For your dog? Asked Mr. Das. Mrs. Das. In surprise, yes, replied the woman. I want him to be dash for my next party. तो इन सारे fill in the blanks में हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डालने हैं. मिस दास हैज अ पार्ट टाइम जॉब. वो पार्ट टाइम जॉब करती थी एक शॉप में. यस्टरडे एंड ऑड लुकिंग वुमन वॉक्ड इनटू द शॉप. हालांकि आई गेस यहाँ पे ओल्ड होना चाहिए बट यहाँ पे ऑड लिखा हुआ है. थर्ड इज शी वॉज वेयरिंग डैश शूज. शूज की बात हुई है तो हाई हील्ड शूज होंगे. ए डैश डॉग वॉज विथ हर. कौन सा डॉग था? स्वीट लुकिंग डॉग. एक प्यारा सा डॉग था जो उसके साथ था. आई वॉन्ट अ डैश शर्ट फॉर माई डॉग. वो शर्ट चाहती है. कैसा शर्ट? लॉन्ग स्लीव शर्ट. प्लीज, शी सेड. फॉर योर डॉग? आस्क्ड मिस दास सरप्राइजली. अब मिस दास हैं वो बहुत ज्यादा सरप्राइज है कि इस डॉग के लिए ड्रेस चाहिए. तो सरप्राइज है तो इनके लिए कौन सा वर्ड होगा? ओपन माउथ. जब हम लोग सरप्राइज होते हैं तो हमारे ऐसे मुंह खुले के खुले रह जाते हैं ना. सो मिस दास ओपन माउथ इन सरप्राइज. वो पूछती हैं कि डॉग के लिए ड्रेस चाहिए. नेक्स्ट. यस, रिप्लाइड द वुमन. आई वांट हिम टू बी डैश फॉर माय नेक्स्ट पार्टी. आई वांट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड फॉर द नेक्स्ट पार्टी. साइलेंट लेटर्स. What is common in the following groups of the word? Sometimes हम जब कोई किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें तो साइलेंट वर्ड्स आते हैं जिसे हमें प्रोनाउंस नहीं करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, नी, नाइफ, नॉट, नो. डिड आई प्रोनाउंस नी, कनाइफ, कनॉट, कनो? नो, बिकॉज के इज साइलेंट. सो आई प्रोनाउंस इट नी, नाइफ, नॉट and no. So here is the word K, silent. Second is never, doubter, fight, straight.
Here is the silent word GH. GH to not be pronounced और हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? ने, व, डाउ, टव, फा, इट, स्ट्रेट। तो यहाँ पे साइलेंट वर्ड्स क्या है? GH। नेक्स्ट, ऑनेस्ट, ऑनर, आर, एयर। यहाँ पे H is silent. Try and make more silent letters word. अब हमें कुछ साइलेंट लेटर वर्ड बनाने हैं, कुछ हमें लिखने हैं। जस्ट लाइक हियर इज एग्जांपल, लेफ्ट। हियर G इज साइलेंट और हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें G साइलेंट हो और स्टार्टिंग में हो। जैसे नॉस्टिक। नॉस्टिक मीन्स pertaining to knowledge. Now, here G is silent and now means bite a bone. किसी हड्डी को काटना या चबाना। Tongue. Tongue. U is silent here and we have to give two examples जैसे कि wag and morgue. Wag means not clear. Morgue means एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है until उसे बरी करने तक। Next, chalk. Here L is silent, so we have given two examples, fork and walk. Whistle. Here is T silent and I have given example, listen and fasten. Here is also T silent. Fork means a particular type of people. कहीं पे ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जैसे हो। वॉक मीन्स पता है, लिसन मीन्स भी पता है, फास्ट मीन्स बांधना किसी चीज को। नेक्स्ट, रीड द टू पैराग्राफ्स गिवन बिलो। My mother is always awake before anyone else in the family. I usually wake up after 6 o'clock. I loll around lazily for few minutes. Then I get up and get dressed for school. At bedtime, I read a storybook. When I feel tired, I lie down and go to sleep very quickly. I fall asleep in no time at all. So this is a paragraph और इसमें कुछ words दिए गए हैं जैसे कि awake, wake up, get up, lazily, lie down and quickly. We have to understand these words. So these words are very important actually. Here are some questions also related to this words. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। एक लड़की है, वो कहती है मेरी माँ घर में सबसे पहले जगती है। अवेक मीन्स जगना, सबसे पहले जगती है जब फैमिली में कोई नहीं जगा होता है। आई यूजुअली वेकअप आफ्टर 6 o'clock। मैं यूजुअली 6 बजे के बाद जगती हूँ। वेकअप मीन्स भी जगना। आई लॉल अराउंड लेजीली फॉर फ्यू मिनट्स। और मैं बहुत काफी लेजी लेजी फील करती हूँ और थोड़ी देर ऐसे ही लेजीली घूमती हूँ कहीं पे कुछ मिनट के लिए। देन आई गेट अप। तब मैं उठती हूँ, खड़ी होती हूँ और गेट ड्रेस फॉर स्कूल, और तैयार होती हूँ स्कूल के लिए। एट दैट टाइम आई रीड अ स्टोरी बुक। और जब मैं सोने को जाती हूँ तो मैं स्टोरी बुक पढ़ती हूँ। और जब मैं बहुत थका हुआ फील करती हूँ, टायर्ड मीन्स थका होना, आई लाई डाउन। लाई डाउन मीन्स मैं लेट जाती हूँ। एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली। और मैं बहुत जल्दी सोने को चली जाती हूँ। और मुझे जब नींद आती है तो उसमें जरा भी टाइम नहीं लगता है, मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। नेक्स्ट, नाउ फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ दैट कंप्लीट द टेबल। अवेक, अवेक मीन्स जागना। सो, asleep मीन्स सोना। wake up, wake up मीन्स जागना। fall asleep मीन्स सोना। get up, get up मीन्स खड़े होना, stand up। और lie down मीन्स लेट जाना। lazily, lazily मीन्स पता है हमें। और quickly मीन्स fast, किसी चीज को जल्दी जल्दी करना। fill in the blanks using the words in the previous question. I told you there are some words, these are very important, so related to these words there are some questions जिसमें fill in the blanks करना है। Dash and dash quickly. Wake up and get ready quickly. You will be late for school. उठो और जाओ, रेडी हो जाओ जल्दी, वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। Second, the baby is asleep. Don't make a sound or she will wake up. बेबी सो रही है, प्लीज आवाजें मत करो वरना वो जाग जाएगी। Are you still awake? क्या तुम अब तक जगे हो? You should be asleep. तुम्हें सो जाना चाहिए वरना you will not be able to get up in the morning. वरना तुम मॉर्निंग में नहीं उठ पाओगे। Let's talk. Lots of things must have happened in the village when Rip was away. Imagine you are the neighbor who greets Rip after 20 years. One student should act as Rip. Tell Rip all about
about all that happened in the village after he left. So basically this is an act जो स्कूल की क्लासरूम में करना है आप लोगों को कि कोई एक बच्चा खड़ा होके रिप का कैरेक्टर प्ले करे और बाकी सारे नेबर का। तो जब रिप वापस आता है तो उसे आप लोग कैसे ग्रीट करोगे, कैसे बताओगे कि आपके पीछे से क्या क्या हुआ यहाँ पे विलेज में, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं, उनसे कैसे बात करोगे कि उनकी फैमिली को क्या हुआ, उनकी फैमिली कैसे सफर की, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं और अदर विलेजर्स क्या सोच रहे थे उनके बारे में, और उन बच्चों का क्या हुआ जिनके साथ वो खेलते थे, और टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, गेस व्हाट हैपेंड ऑन द डे यू लेफ्ट। तो जब भी रिप वैन विंकल आए तो उन्हें कैसे पूछना है कि गेस करो कि तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ, उस काम को क्या हुआ, सब लोग क्या बातें कर रहे थे, और तुम्हारी वाइफ वो तो काफी रो रही थी। सो here is the suggestion, you could start like this. Now read the speech bubbles. Who walks to the school most often, put them in order. So here are some school student who goes to school and who walk more often, हमें उसे लिखना है। जैसे कि अनु कहती है I don't usually walk to the school, I often go by the cycle. तो अनु यूजुअली साइकिल से नहीं जाती है, सॉरी वॉक करके नहीं जाती है, वो साइकिल से जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है अनु कम चलती होंगी। जॉन आई नेवर वॉक टू द स्कूल, आई लिव वेरी फार अवे। जॉन काफी दूर में रहते हैं तो वो कभी नहीं जाते हैं स्कूल पैदल। अर्जुन आई ऑलवेज वॉक टू द स्कूल, आई लिव राइट अपोजिट द स्कूल। और अर्जुन क्या है, ऑलवेज वॉक करके ही स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं स्कूल, क्योंकि उनका घर नजदीक है। मिनी आई समटाइम्स वॉक टू द स्कूल, एट टाइम्स आई टेक बस ऑल्सो। मिनी भी पैदल जाती है, बस समटाइम्स वो बस ले लेती है, वो कभी कभी पैदल जाती है। नाजीम आई यूजुअली वॉक टू द स्कूल, इट्स अ नाइस वे टू स्टार्ट द डे। नाजीम भी यूजुअली मतलब बार बार स्कूल पैदल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन जाता है पैदल, सबसे ज्यादा वॉक करके कौन जाता है, अर्जुन। उसके बाद नजीम, नाजीम। उसके बाद मिनी कहती है मैं कभी कभी जाती हूँ, समटाइम्स। अनु कहती है डोंट यूजुअली, मैं यूजुअली नहीं जाती बट कभी कभी चली जाती हूँ। तो फोर्थ नंबर। एंड जॉन कभी नहीं जाता है वॉक करके, इज फिफ्थ। नेक्स्ट, creative writing. Write about yourself using the following expressions. Here are some words जिसे यूज करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा। फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार। यूजुअली मीन्स भी होता है बार बार, मतलब कि जनरली करना है किसी काम को। ऑफन, ऑफन का भी मतलब सेम होता है, बट ये सबसे ज्यादा, अगर हम परसेंटेज की बात करें इसमें, तो ये 100% है किसी चीज के बारे में कि हमेशा करता हूँ ये काम। फ्रीक्वेंटली मीन्स भी कह सकते हैं कि हाँ ये चीज हमेशा होती है। यूजुअली मीन्स कि मैं अगर एक आध दिन एबसेंट हो गया तो हो गया, बट मैं यूजुअली करता हूँ। ऑफन मीन्स मैं खेल लेता हूँ। अब मान लेते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो हाँ मैं खेलता हूँ, बराबर खेलता हूँ मैं क्रिकेट, कभी कभी एबसेंट हो जाता है। सो दिस द मीनिंग ऑफ ऑफन। नाउ समटाइम्स मीन्स कभी कभी, कभी कभी करता हूँ कभी कभी नहीं करता हूँ, ये मन पे डिपेंड करता है। रेयरली, रेयरली मीन्स कि शायद ही कभी करता हूँ या फिर नहीं ही करता। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब हमें इसे यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। Here is given an example. I always do my work neatly. Always means हमेशा. And here is 5 sentence. I always do my homework. मैं हमेशा अपना होमवर्क करता हूँ। I usually help my mother. मैं अपनी माँ का हेल्प यूजुअली करता हूँ। Usually is equivalent to always. I frequently go to the temple. Sometimes I do mistakes. कभी कभी मैं गलतियां कर देता हूँ। I rarely lie. मैं शायद ही कभी झूठ बोलता हूँ। Next. I often play cricket. Often का भी मतलब मैंने बता दिया था। Next. Use the following clues to complete the following exercise. Here are some words. ये as a clue आप use करो और नीचे के sentence को complete करना है। Write 3 new things that you have done in the last 3 years. इन 3 सालों में आपने क्या किया या फिर क्या स्टार्ट किया उसे लिखना है एज अ सेंटेंस। और यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, अगर आपको यूज करना है तो करो, वरना आपको पता है कि इन 3 सालों में आपने क्या किया है, तो जस्ट यू राइट योर ओन। I have started to learn. Second is I have started dancing.
आई हैव विजिटेड ताजमहल, इन 3 सालों में मैंने ताजमहल देखा। सेकेंड नंबर, राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन लास्ट 3 years, और इन 3 सालों में ऐसा क्या है जो आपने नहीं किया। आई हैव नॉट प्लेड चेस, इन 3 सालों में मैं चेस कभी नहीं खेला। आई हैव नॉट सीन पिकॉक, इन 3 सालों में मैं पिकॉक को नहीं देखा हूँ। आई हैव नॉट बाउट शूज, मैं शूज भी नहीं खरीदा 3 सालों में शायद। So this is all about today's video. If you find it helpful, do subscribe my channel, and we'll meet in the next video. But again, take care.